Hello friends, this is me Abhishek and welcome to my channel Study with Abhi. Today we are going to discuss chapter number 5 of your class 10th RBSE book, that is chemistry in our everyday life. With hearing the name, you guys I think understand that what is the chapter related to is. That is, we're going to find the chemistry in our day-to-day life. That is a very interesting topic we have. So without wasting time, let's get started. And before this, like my channel, subscribe my channel, and if you have any query, just put up in the comment box. So this is your chapter number 5, that is chemistry in everyday life. We are just going to start it. So from the very beginning I'm going to start, and we see that chemicals are used in each field of life. All the bioactivities are operated by the chemicals. Soap, detergent, beautiful clothes, various things of household consumption, etc. are chemical substances, and cements in making building, electrical apparatus, satellites, from motor vehicle and up to agriculture field, every chemicals are used, and the theories of the chemistries are used. We use the medicine when we fall ill. There is also a chemical, many types of sour and sweet substances, food preservatives, and also chemical. Hence it is true in that daily life cannot be imagined without the chemicals. So मैंने आपको पूरा जल्दी पढ़ा दिया, उसको समझा देता हूँ कि हम हमारे every field of our life, in every part of a field of our life, हम केमिस्ट्री देखते हैं. वी फाउंड द केमिकल्स, our daily activities like bioactivities, that is related to the like soaps, detergent, any kind of beautiful cloth that you find is also made up of a huge number of chemicals. Various things of a household related to consumption that you are using also related to the chemical. जो भी आप रेगुलर डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ करते हैं वो टोटली केमिकल होती है. इफ़ यू जो सीमेंट्स होती है बिल्डिंग बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अपैरेटस जो आप यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स के लिए या अपने घरों के लिए, that is also a chemical, that is also made of a chemical, that is electrical chemical actually, that we're going to study in the chapter number 10 or 11 maybe. And whatever the related theories are there, also we will use the chemistry only. When we जब हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन हम यूजली टेक द मेडिसिन. सो फॉर दैट वी ऑल्सो दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ केमिकल्स. सो मेनी थिंग्स आर ओवर हियर डिस्क्राइब्ड इट ओनली इन आवर डेली लाइफ रिलेटेड टू द केमिस्ट्री एंड केमिकल्स. Here in the next topic we will see the acid, base and salt. So मैं आपको सिंपली जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दूँ. इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट बट इट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज एसिड्स मैं बता दूँ आपको. एसिड का कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूँ जिनका लेवल ऑफ पीएच अभी इन द फर्दर टॉपिक यू विल डिस्कस रिलेटेड टू द पीएच. व्हाट इज पीएच? वैसे मैं आपको बता दूँ दैट इज पीएच मीन्स द पावर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स वेयर द नंबर ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन 7, दैट थिंग्स इज टू बी कॉल्ड एज एसिड्स. यानी जिन एसिड या जो भी सब्सटेंस का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज पीएच अगर स्मॉल लोअर देन 7 हो वो एसिड्स कहलाते हैं. एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं. और एसिड जो एक लैटिनस वर्ड है एक्चुअली, दैट इज एसिडस. इसका मतलब होता है सोर, दैट इज खट्टा. और ये एसिडिक एसिड में होता है विनेगर में, यानी जो विनेगर मतलब खट्टा होता है विनेगर. टार्ट्रिक एसिड है टैमराइड में, इमली में पाया जाता है. और स्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज, और स्कॉर्बिक के साथ में यहाँ पे सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है और इनमें वो भी खट्टा होता है. फॉर्मिक एसिड इन स्ट्रिंग ऑफ रेडान, जो लाल चींटी होती है उसकी उस जब वो काटती है तो स्ट्रिंग से, तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड जनरेट होता है. वो भी ऑब्वियसली एक एसिड ही होता है. दैट इज़ वेरी हार्मफुल एक्चुअली. Acid has a property that it turns a blue litmus paper into red. If we like हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, वी हैव एन फिल्टर पेपर, अगर हम उस पर एसिड डालते हैं और ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो जाएगा तो दैट इट शोज दैट जो भी हमने चीज़ डाली है, जो भी सब्सटेंस डाला है वो एसिडिक है. नाउ वी विल ऑन द बेस. बेस आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं और ये क्या होते हैं रेड लिटमस से ब्लू में होते हैं. वो ब्लू एसिड ब्लू टू रेड होते हैं और बेस आपके रेड लिटमस टू ब्लू होते हैं. इनके पास सोप लाइक बिहेवियर होता है जब टच होते हैं. मतलब यहाँ पे मोस्टली आपको एक एग्जांपल लर्न करना है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज इंपॉर्टेंट ओनली. नाउ आपको बता दूँ सॉल्ट. तो सॉल्ट वो होते हैं जो क्या होते हैं, मैं सिंपली बोलूँ कि एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं एक साथ तो सॉल्ट और वाटर बन जाए तो वहाँ पे आपका हो जाता है सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है. यानी एसिड और बेस पर हमने कंबाइन किया एक साथ तो सॉल्ट बाहर निकल जाए और वाटर अलग हो जाए तो वो आपका कंडीशन क्या कहलाएगी, सॉल्ट्स की कंडीशन कहलाएगी. उन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. हेयर इज गिवन ऑलरेडी, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी मोस्टली हम इनमें ये कहेंगे जब एसिड और बेस कंबाइंड गेट न्यूट्रलाइज. नाउ एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे. एक्चुअली बहुत सारी नहीं, हम 3 थ्योरी पढ़ेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे है आपको यहाँ पे दे रखा है डेफिनेशन. मैनी साइंटिस्ट
gave many definitions of the acid and base. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. और हेयर इज दैट फर्स्ट हम पढ़ेंगे आरएनएस थ्योरी. अब यहाँ पे आरएनएस थ्योरी में बस आपको सब में जितनी भी थ्योरीज है उनमें यही समझना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. इट्स जनरली रिलेटेड टू द एग्जाम और मे आस्क इन द एग्जाम. तो मैं आपको आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बताता हूँ. The substance which give hydrogen ion when decomposes in a water are called acids, or those substances that decomposes in water and give hydroxide ion means OH ions, OH plus ions actually, that is base. एक्चुअली ऐसे आयन जिनको हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो वो H प्लस आयन दे दे तो वो आपके एसिड्स होंगे, और जो OH आयन्स दे दे वो आपके बेस होंगे. तो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए. यहाँ पे हम कुछ एसिड्स के देखते हैं. यहाँ पे देखा है HCl. जब हम HCl को ब्रोक करते हैं, जब वो ब्रेक होता है तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, H प्लस Cl ये बनता है. तो H पॉजिटिव आ गया और Cl नेगेटिव. तो H पॉजिटिव दिखाते हैं कि एक एसिड है. यहाँ पे HNO3 की बात करूँ तो H प्लस और NO3 अलग डिकम्पोज हो गया है यहाँ पे रिएक्शंस के अकॉर्डिंग नाइट्रिक एसिड में. तो H प्लस यहाँ पे आपको क्या दिखा है, दैट इज इट इज एसिड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस. बेस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देखो कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है KOH, तो K प्लस OH माइनस, तो OH माइनस आ रहा है, मीन्स ये क्या दिखा रही है, बेस है. हाइड्रोक्साइड आयन मोस्टली होते हैं इसमें जो आपके बेस को रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे आपका एक और एग्जांपल है NaOH है, तो ब्रेक होगा तब क्या होगा, Na प्लस OH, तो OH नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे आपको बेस को रिप्रेजेंट करेंगे. मैं सिंपली आपको बता दूँ जो H प्लस आयन होंगे, जहाँ पे आपको H प्लस ब्रेक होता हुआ दिख रहा है वो आपके एसिड्स को शो करेंगे, और जहाँ आपको OH माइनस ब्रेक होता हुआ दिख रहा है तो आपको वहाँ पे बेस दिखेगा. तो दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद दिस थ्योरी. बस आपको इतना से रिमेंबर आउट करना है इस थ्योरी में, और इतना ज़्यादा नहीं है इसमें. Now we will study Bronsted-Lowry concepts of acid and base. The definition of acid and base was given by Danish chemist Johns and Bronsted. यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नेम दे रखा है, ये ब्रॉन्स्टेड जो ल्यूरी है इसका जो नेम है, एक्चुअली डिफाइन इट इज डिस्क्राइब फ्रॉम वन ऑफ द वर्ड नेम्ड ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज a Danish chemist Johannes and Bronsted, that is from 1874 to 1936, and British chemist Thomas Lowry, that is from 1874 to 1936. ये दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली who have given the theory of Bronsted-Lowry. एक्चुअली Bronsted-Lowry इसलिए भी कहते हैं कि इसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट की जो कास्ट है दैट इज Bronsted, और जो दूसरे साइंटिस्ट है उनकी जो केमिस्ट्रिकल है उनके दूसरे साइंटिस्ट की जो कास्ट है वो है लोरी. तो Bronsted-Lowry मिक्सचर को कहते हैं. तो मैं सिंपली आपको बता दूँ इसमें आपको एसिड और बेस कैसे डिफाइन होगा. एसिड आर प्रोटोन डोनर, बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर. जब कोई प्रोटोन कोई भी सब्सटेंस अपने प्रोटॉन्स को डोनेट करता है तो वो एसिड्स होगा अकॉर्डिंग टू द Bronsted-Lowry, और अगर वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो वो बेस होगा. तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल सी, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. हियर जस्ट एग्जांपल देखो आपको ले रखा है, दैट इज HA प्लस B. यहाँ पे आपको H दिख रहा है A के साथ, तो H जहाँ दिखता है वो एसिड होता है और B बेस है. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि A ने अपना क्या किया, अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है B के पास. तो क्या हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बेस हो गया है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने पे बेस रिप्रेजेंट करता है, बट ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है हेयर, और B गॉट द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ही गेट H फ्रॉम HA मीन्स HA, सो इट्स कॉल्ड कॉन्जुगेटिव एसिड. सो यहाँ पे HA जो कि A नेगेटिव हो गया है वो यहाँ पे एज ए कॉन्जुगेटेड बेस पेयर है, और BHB दैट इज B और HB प्लस आपको यहाँ पे जो दिख रहा है हेयर इज HB प्लस. तो ये एसिड पेयर हो गया. कैसे हम आपको बताता हूँ बेस पेयर कैसे हो गया. आपको ये समझ नहीं आ रहा होगी कि एसिड कॉन्जुगेटिव बेस कैसे हो गया. हाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. देखो HA यहाँ से A बना है, तो HA के यहाँ पे एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसने अपना प्रोटॉन क्या किया, डोनेट कर दिया है. डोनेट करने से क्या हुआ, तो यहाँ पे हम इसको जो डोनेट करने वाले कहेंगे कॉन्जुगेटिव बेस. तो हमने क्या किया, इनको मिला के लिखा एसिड कॉन्जुगेट बेस. तो ये एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर हो गया, और यहाँ पे इसका है BHB तो बेस, और यहाँ पे इसने क्या किया, लिया एक्सेप्ट किया बिकॉज ही गॉट अ पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ दैट. So he will be base conjugative acid pair. That will be this. Very easy.
सो बस आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, एसिड होते हैं प्रोटोन डोनर्स और प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं आपके बेस। बस इस थ्योरी में इतना ही बता रखा है, और तो मेन टॉपिक आपके बस इतना ही। मोस्टली एग्जाम्स में you will just ask only about the theories and one of the examples, because it's very easy chapter to be understand. So friends, for today it's enough. Tomorrow we will study the Lewis base concept. That is very important theory actually. आज हमने जो theory पढ़ी that is important but is not much important, but tomorrow what we are going to study that is very important and also interesting for us. So till then, stay safe, stay at your homes, and also please stay at your homes, maintain the social distance, because of a coronavirus is having a great harm if you are not going to be follow it. So please stay at your home, stay safe. Till then, like it my channel, subscribe my channel. If you have any queries, just put on in the comment box. Thank you.